Hello everyone. So once again we are here to discuss the basic components, a few basic components of English which make a lot of difference to your scores in your competitive exams. Sometimes these could be the deciding factors or decisive factors as we say. So the most important obviously is a practice, and to ensure that you practice these questions a lot, you have enough of practice, we are once again here to serve you. Great. So let's start. So as always, we are starting with vocab. So it's a piece of cake. Now what does it mean? What is a piece of cake? कैसा होता है piece of cake? Piece of cake होता है बहुत ही आसान, right? Okay. So let's say this wrong. This is wrong. This is also wrong. ये correct है. So केक खाना आसान होता है ना और टेस्टी भी होता है, right? Because it is soft, तो उससे आप relate कर सकते हैं at least. It's all about relatability. If you can relate it, then you'll be able to retain it also, right? Second one, a dime a dozen बहुत आसान. A dime a dozen something common को कहते हैं. Okay? Okay. ये सब गलत हो गए जी. चलिए. Next one, call it a day. मतलब end कर देना दिन को. So आज हम और काम नहीं करेंगे. Stop working on something. बस. Easy does it. Easy does it मतलब आप ठंडे हो जाओ, cool हो जाओ, you'll be able to do it. So it is to use one still, yeah, slow down. So relax, आराम से relax हो जाओ. Hang in there मतलब डटे रहो, right? So don't give up. चलिए. Fine. Now we have, as always, some questions on sentence rearrangement, but we have made a change. पहले हम फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को फिक्स रखते थे, अब वो फिक्स नहीं है, आपने वो भी गेस करने हैं. सो जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं वो भी अब इस क्लास में ही हम लोग गेस करेंगे, गेज करेंगे. चलिए. सो चिल्ड्रन फॉलोइंग बिलो अ सर्टेन एज, वी डोंट नो. अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं. चिल्ड्रन फॉलोइंग बिलो अ सर्टेन एज लिमिट वोंट बी अलाउड टू इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ वर्क फोर्सफुली. ओके. ए. बी, इट इज लाइक एक्सपेक्टिंग किड्स. तो ये तो ओपनिंग नहीं हो सकता बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद इट इज लाइक, राइट? सो व्हाट इज दैट इट? तो ये तो बिल्कुल गलत है. चाइल्ड लेबर इज अ टर्म यू माइट हैव हर्ड अबाउट इन न्यूज. ये ना जेनेरिक है. सो जनरली ये जो जेनेरिक सेंटेंसेस होते हैं, आई होप दिस इज रीडेबल. सो अगर मैं येलो करूं तो शायद आपको बेटर दिखे. यस, ये जेनेरिक सेंटेंस है, सी, राइट? सो दिस जेनेरिक सेंटेंस कुड वेल बी दी ओपनिंग सेंटेंस, क्योंकि पैसेज का जो पैराग्राफ का जो क्रक्स है, जो सब्जेक्ट है, वो इसी पर बेस्ड है और इसी में इसको इंट्रोड्यूस भी किया है. सो आई थिंक दिस कुड वेल बी दी ओपनिंग सेंटेंस अभी के लिए. देयर आर सर्टन पॉलिसीज विच have put, ये तो नहीं हो सकता. We are trying to look at the opening sentence. It refers to, what refers to? So we have found the opening sentence. Dear friends, it has to be C. और लिखा कितना गंदा है ये मैं इसको दोबारा लिखता हूँ. हाँ, this is looking more like C. चलिए. So next sentence कौन सा होना चाहिए? अब we have two sentences जो it वाला है, दो हैं. चलिए. Let's put B पहले, सोचते हैं. It is like expecting kids to perform responsibilities like working and fending for themselves. एक. It refers to a crime where children are forced to work. क्या relatable है? देखिए, child labor is a crime where children are forced to work. तो वो define कर रहा है इसको. So जब वो define करता है कोई sentence, तो वो pair होते हैं, right? Further, we also see this noun, pronoun pairing, noun pronoun pairing. So this is E. Fine, settled. Next, इसके बाद we need a sentence जिसमें description हो, और वो आपको B में नजर आ रहा है. It is like expecting kids to perform responsibilities. ये देखिए, early age, kids, keywords की वजह से भी ये linked है. So we have B, right? Then we have D. Why? There are certain policies which have put restrictions and limitations on children working. Kids, children. To perform, working.
कितने सारे कीवर्ड्स हैं जो इनको लिंक कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज डी, राइट? यू लेफ्ट विद ए, सिंपल. CEBDA, which option? Option 1, which makes it absolutely the correct answer. चलिए, I hope समझ आया हो. Still कोई डाउट हो तो फिर once you see the video, you can always comment, right? You can always ask your doubts. You're most welcome. Our different social identities and the social groups we belong to determine our inclusion within society and by extension our vulnerability to epidemics. Okay, we all have been affected by the current COVID-19 pandemic. See, बाकी sentences को देखो. Working online, ये सब कब हुआ है? The impact of the pandemic, जब COVID आया. So where is COVID introduced? Here. We all have been affected by the current COVID. Most generic, that means it has to be B first. Right? Extremely sorry. हाँ, ये जो मैंने कितना गंदा किया है, मुझे ये साफ कर देना चाहिए पहले. Now we can move to the next question. Okay. So this will open. ये तो हमें समझ आ गया quite easily that B should open the paragraph, right? The discussion. ठीक है. अब pandemic में हुआ क्या है? Okay. However, the impact of pandemic and its consequences. अगर हम D put करते हैं तो now see, C और D का pair है. Why? While some try to adapt to working online homeschooling their children and ordering food via Instacart, others have no choice but to be exposed to the virus. तो ये impact की बात कर रहा है. Where is D? However, the impact of pandemic. So जो impact C में बता दिया है, C और D का पेयर है. So C और D इकट्ठे आएंगे, इनको आप अलग नहीं कर सकते, right? Quite easily ये सेट बना रहे हैं. B, उसके बाद उसका impact की शुरुआत, right? Then D and then A. B, C, D, A. Option 1 again. I hope this is clear to everyone. सेम लाइन अगर मैं बार बार नहीं बोलूं तो भी ये अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज गेट इन टच विद अस, है ना? फिर हम इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, विल डिस्कस इट, वहां पे आपको समझा भी देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए अब हम. ओके, सॉरी, ये बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज हियर वी हैव 7, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटेंसेस. तो 7 सेंटेंसेस होंगे तो ज़्यादा ट्रिकी होगा ऐसा लगता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो. इसमें पेयर्स इजीली मिलेंगे आपको. चलिए, सो सबसे पहले तो इट इज़ नॉट इवन, ये तो हो नहीं सकता ओपनिंग सेंटेंस, राइट? इट इज़ नॉट इवन बिकॉज ये हो नहीं सकता. बी, मोर ओवर वाला सेंटेंस भी नहीं होगा. सी, नॉर इज इट, क्योंकि है इसमें, ये भी नहीं हो सकता. इट इज बिकॉज इट इज से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता. 4 sentences have been eliminated. See, 3, the reason for what? E is also wrong. Definitely इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है to stand as the opening sentence, right? Okay. Our citizens will have to learn at least one language. Looks like ये generic है. The native of any country is immersed in his own language. Fine. Okay. ये भी नजर आ रहा है. ओके, ठीक है. तो अब अगर हम जी से शुरू करते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन हियर, और उसका एक रीजन है. जी से पहले वी नीड अ सेंटेंस, राइट? जी बात कर रहा है नेटिव ऑफ एनी कंट्री इज इमर्स्ड इन हिज ओन लैंग्वेज एंड नेवर सीज इट एज अ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर. तो लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया है जी ने, इसलिए जी कैन नॉट बी द ओपनिंग सेंटेंस. ओपनिंग सेंटेंस के लिए एक ही चॉइस बची अब आपके पास, दैट इज एफ, which reads our citizens will have to learn at least one language. Okay, ab it is because they cannot understand. Okay, our citizens हो सकता है वो हो, right? Nor is it because, it is not even because. I shall pick, जहां पे रीजन इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहले. बाकी सब में रीजन है ना. Nor is it, इसमें रीजन है. Moreover, it is not even because, right? It is because. So सब रीजंस हैं. सबसे पहले रीजन इंट्रोड्यूस कहां हुआ है? यहां पे. द रीजन इज नॉट सो दिस शुड बी एफ और ई. इनका पेयर तो समझ आ गया. नाउ वी हैव 2 choices, ये या ये. चलिए देखते हैं.
So the second reads, E reads, the reason is not so that they can sell things to Brazilians or study German medical books or appreciate those beauties of Homer, एक बहुत famous author रहे हैं, renowned author, that are lost in translation. Okay? अब इसके बाद आना चाहिए, nor is it because, ऐसा ही कुछ, क्योंकि पहले लिखा है, reason ये नहीं है, right? So अब nor is it because या ये it is not even because, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए. चलिए अब देखते हैं, either C और B. Okay, moreover he cannot learn वाली चॉइस तो हो नहीं सकती, therefore it has to be FEC, right? Nor is it because they will gain satisfaction in recognizing, so FEC. Fine, clear set है. Then you have A, और भी इसलिए नहीं, it is not even because grubbing for roots is good discipline. Then we have A and then we have D. Why? It is because, अब contrast introduce हो गया. अब reason बताया उन्होंने, पहले बताए तीन के क्यों नहीं, finally बताया कि it is because. Fine. Then you have G. मैं बात कर रहा था पहले that G needs a context, right? Where is G? Yeah. Native of any country. अब ये introduce किया contrast कि इसलिए because they cannot understand their own language unless they have studied another. The native of any country, वो अपनी लैंग्वेज में इतना डूबा हुआ होता है कि उसके लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को उसको लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर समझने लगता है. So D and then you have G and B. So the job is done, my dear friends. I hope you have been able to understand it. Okay. Next one. चलिए, the proportion of populace underneath deficiency line has been declining. Okay. Therefore ये तो हो नहीं सकता opening sentence. Deficiency mitigation ये हो सकता है. It is very generic in nature, right? Even though वाला हो नहीं सकता. Extremely sorry. The degree of success of this program, भाई which program? So ये भी नहीं हो सकता, right? Therefore you have two sentences now जो थोड़े बहुत generic हैं, एक C और एक A. A वाली तो कोई चॉइस है नहीं, अब एक C वाली चॉइस जरूर है हमारे पास. अच्छा, A एक और रीजन से नहीं हो सकता. C says deficiency mitigation is one of the most momentous programs. The proportion of populace underneath. इसमें ना सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं है, C में है. C ये सब्जेक्ट है. Extremely sorry. Programs जो है वो सब्जेक्ट है. So it has to be C. Okay. Now the degree of success of this program. Which program? जो C में highlighted है. Therefore it is C and E forming a pair. Fine. अब A को देखिए. The proportion of populace underneath deficiency line has been declining. वो impact है किसका? E को देखें. The degree of success यानी success बताया है ये underneath declining, तो कम हो रहा है नंबर, वो सक्सेस है. सक्सेस कीवर्ड इज लिंक्ड विद ये द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, वो अंडरनीथ द डेफिशिएंसी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कम हो रहा है, तो यही तो सक्सेस है. C, E and A. ओके, बस. नाउ वी हैव B and D. देयरफॉर इट इज एन एनकरेजिंग सिंबल. ये जो है ये एनकरेजिंग सिंबल है. फाइन. सो दिस इज B and then you have D. Even though this modification is sluggish, ये modification तो sluggish है, कम है, slow है, लेकिन unswerving है, steady है. Okay, next one. Some non-governmental organizations help the needy and destitute fight adversities. ये generic लग रहा है जी, चलिए हो सकता है हो भी. The social dispositions of people are despicable. ये ज़्यादा generic है. क्यों? Social dispositions, behavior आपका, जो आपके मैनरिज्म्स हैं, ये ऑफ पीपल से ज्यादा जेनेरिक क्या होगा, राइट? सो जेनेरिक है. मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस हो सकती है. दीज वाला तो हो नहीं सकता टू ओपन, राइट? कौन है ये देयर? वी डोंट नो. ओके, सो ओवरकमिंग द क्विकेटिश नेचर. क्विकेटिश होता है मतलब जो चेंज होता रहे, सो जिस पर आप ट्रस्ट ना कर सको. And ineffable intricacies of circumstances, ये भी जेनेरिक नहीं है. कहाँ बताया है क्विकेटिश नेचर पहले? सो वी डोंट नो. इससे पहले कोई सेंटेंस होना जरूरी है. फाइन. सो बी से वी शिल स्टार्ट, आई बिलीव. चलिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि बहुत ही जेनेरिक सेंटेंस है, राइट?
ओके, अब ए या सी, अब एक चेन बनेगा, देखते हैं। द सोशल डिस्पोजिशंस ऑफ पीपल आर डेस्पिकेबल, मतलब डेस्पिकेबल मतलब जिसे नफरत की जा सके, एंड डम्फाउंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स, डम्फाउंड मतलब शॉक कर देना, फिलॉन्थ्रोपिस्ट कौन, हु लव ह्यूमन काइंड, राइट। सो सोशल डिस्पोजिशंस लोगों की इतनी गंदी हैं कि वो इन लोगों को जो सबका भला चाहते हैं, इनको वो शॉक कर देती हैं, राइट। चलिए, अब अगर हम इसके बाद ए रखते हैं, सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द नीडी, ओके, तो एक अब्रप्ट तरीके से नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट व्हेन यू लुक एट सी, दीज ऑफन डिसाइड टू चैलेंज, कौन है ये दीज, फिलॉन्थ्रोपिस्ट्स, दीज ये लोग, noun pronoun pairing, often decide to challenge the deplorable social structure. See, clear pair है, okay? अब कैसे चैलेंज करते हैं ये, they form NGOs, ठीक है जी, help the needy और गरीबी से लड़ने में हेल्प करते हैं। सो BCA का तो सेट है, inseparable सेट है। अब D को देखें, their efforts, किसके, NGOs के efforts, D कहाँ गया, या efforts however are hampered and slowed down almost at every step by the brutal social and sometimes familial setup. कई बार families ही allow नहीं करते हैं, why do you want to be a part of an NGO, you should earn more, कहीं और जाओ, business करो, ये करो, वो करो, right? Then we have E, overcoming the nature and ineffable intricacies of circumstances, they need to ensure कि वो प्रेशर के सामने झुके नहीं और आगे बढ़ें और ह्यूमन काइंड को सर्व करते रहें। BCADE, आई होप यू हैव बीन एबल टू गेट इट, ओके। अब कुछ वोकैब के क्वेश्चंस, जस्ट लाइक द कस्टमरी प्रैक्टिस। सिनोनिम से जी हमें, थॉट मतलब रोक देना, प्रोग्रेस रोक देना, स्टॉप इज द आंसर, ओके। चलिए अगला, पेन्यूरी, इसका मतलब होता है बहुत गरीबी, पेनीलेसनेस, डेस्टिट्यूशन का भी सेम मीनिंग हो सकता है, ना सब गलत। चलिए, अफ्लुएंस मतलब रिचनेस, विगर मतलब पैशन, कॉम्प्लिसेंट केयरलेस हो जाना, ट्रेमेंडस समथिंग बहुत अच्छा, प्लेथोरा मिरियाड, एक्सेस ऑफ समथिंग, सो रॉन्ग। स्टैगर हैरान कर देना, स्टन कर देना, डम्फाउंड, ये नेगेटिवली होता है अक्सर। चलिए जी, ग्रेगरियस मतलब काइंड, ब्रूटल इसका एंटोनिम है, करेक्ट, बिल्कुल सही एंटोनिम है। अलाउ मतलब इजाजत दे देना, नो इसका मतलब जूझना, करेक्ट आंसर। प्रिक्लूड मतलब रोक देना, ना होने देना। इनकंट्रोवर्टिबल जिस पर आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकते, अक्यूज्ड इज द आंसर। ऑल राइट, चलिए। इंट्रेपिड मतलब फियरलेस, बिल्कुल ना घबराने वाला, टिमिड घबराया हुआ, कॉन्फिडेंट शिपिश मतलब घबराया हुआ अगेन, ओके फाइन। सो प्लैटिट्यूड्स आर इजी टू बी रेंडर्ड एंड पोजिटेड। अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, राइट। प्लैटिट्यूड्स मतलब ये बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, इंसान को ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए, इसकी हम बात करें, ओके। आर इजी टू बी रेंडर्ड एंड पोजिटेड। साइनोसॉर्स मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, ऑफ मोस्ट फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज में ही तो प्लैटिट्यूड्स होते हैं। ब्रोच मतलब टू ब्रिंग समथिंग फॉर डिस्कशन, ह्यूमन वैल्यूज एंड सोसाइटी डिटरमिन यार्डस्टिक्स मेजर गुड एंड बैड, मतलब बड़ा आसान है ये जज करना, ये बोलना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। दीज ऑफन पिवट, सेंटर में रखना। अ मैन हु इज वर्चुअस फॉर नॉट सब्जेक्टिंग हिज वाइफ टू वायलेंस एंड नॉट आस्किंग फॉर डाउरी। कोई मेल, ये बड़ा आयरॉनिकल है वैसे, हमारी सोसाइटी में हम बड़ा प्रेज करते हैं उस मेल को जो डाउरी ना मांगे या अपनी वाइफ को ना मारे, बट इजंट इट नॉर्मल? यही तो नॉर्मल इंसान की खासियत है, ये नॉर्मल, ये दिस शुड बी नॉर्मल सी। हमारे यहाँ पर ऑर्डर ऐसा हो गया कि हमें लगता है वाओ कितना अच्छा आदमी है, बट दैट अच्छा आदमी इज नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, राइट। एनी हाउ, और अ गुड वुमन हु इज नॉट प्रोमिस्क्यूअस। गुड वुमन के हमारे लिए क्या पैरामीटर्स हैं कि वो लूज नहीं होना चाहिए। प्रोमिस्क्यूअस मतलब कई लोग से उसका रिलेशनशिप ना हो, राइट।
endures all the atrocities perpetrated by various men in society. वो सारी atrocities को झेल जाए, पति परमेश्वर और मेल्स के डोमिनेंस को चैलेंज ना करे, तो वो अच्छी है, एंड्योरेंस है उसमें। यही हमारे पैरामीटर्स हमने बना लिए हैं। सार्कास्टिक है बहुत, राइट। नेवर थिंक्स अबाउट मूविंग आउट ऑफ अ मैरिटल रिलेशनशिप। बेचारी सब कुछ सहती जाए, पति मारे तो भी ठीक है। इफ द हस्बैंड इज ब्रूटलाइजिंग हर, शी इज फाइन, शी इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। तब हम लोग उसको कोट एंड कोट टैग देते हैं ऑफ अ गुड वुमन, राइट। दैट इज आवर डेफिनेशन, इट इज सो सैड, सो डिप्रेसिंग। एंड डज नॉट हैव द ऑडेसिटी, हिम्मत, टू डिफाई द डिक्टैट्स। डिक्टैट्स मतलब वो रूल्स जो अनाउंस कर दिए गए हैं बिना लोगों की परमिशन के, उनसे डिस्कस किए। सो पति डिसाइड कर देगा कि भाई आज से ऐसा रहेगा हमारे घर में, वो उसको मानना पड़ेगा, तब हम मानते हैं अच्छी लड़की है। हाउ सिली ऑफ द पावरफुल पेट्रियार्क्स इन हर फैमिली। चलिए जी, क्लियरली हमारी सोसाइटी में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैन एंड वुमेन विद द मेंशन्ड क्वालिटीज वी हैव ड्यूप्लिसिटस स्टैंडर्ड्स। हमारे अलग स्टैंडर्ड्स हैं। मेन के लिए बहुत अच्छा आदमी अगर सिर्फ अपनी बीवी को नहीं मार रहा है तो भी बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी होगा और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो वो बड़ा अच्छा बंदा है, बट वो तो नॉर्मल है। और सॉरी, ऑन द अदर हैंड वुमेन अगर मार खाने को चैलेंज करिए तो वो खराब है। कितना फर्क है देखिए स्टैंडर्ड्स में। सो देयर आर various examples to illustrate this hypocrisy. ये hypocrisy है। A man who remains out with friends at night is careless at worst. ज़्यादा से ज़्यादा उसको careless ही कहेंगे, right? But a woman who does the same invites rapes. तब हम कहते हैं कि खुद ही रेप को इनवाइट कर रहे हैं, right? Bollywood male actors show their gym-toned bodies, shirtless घूम सकते हैं वो on the screen, and we clap, बड़े खुश होते हैं हम। Female actor wearing translucent attire, जिसमें थोड़ा सा भी विजिबल हो, इज ट्रोल्ड ऑन ट्विटर, तो उनकी बेइज्जती करना ट्विटर पे लोग शुरू कर देते हैं। फीमेल एक्टर वाज रिसेंटली, हमने नाम नहीं लिया, सेंश्योर्ड एंड डिरीडेड। एक एक्टर थी फीमेल एक्टर, उनको क्रिटिसाइज किया गया था और कहा गया था, क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि उन्होंने तीसरी बार मैरिज किया था। वी फाइंड इट ईजी एंड वेल विद इन आवर राइट टू नॉट ओनली जज बट ऑल्सो टर्म विमेन एज प्रोमिस्क्यूअस। तो हमें बड़ा आसान लगता है विमेन को लूज कह देना, चरित्रहीन कह देना, कैरेक्टरलेस कह देना। दिस मेक्स अ ह्यूज नॉइज इन आवर सोसाइटी। चलिए, मैन ऑन द अदर हैंड आर टर्म्ड लोथारियो होते हैं, जो बहुत विमेन के साथ जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा होता है। ओनली इफ दे हैव इलिसिट लव अफेयर्स विद डजन्स ऑफ वुमेन, यानी डजन्स के साथ करेंगे तब उनको ये डिग्री मिलेगी, ये टैग मिलेगा, या वो मेन ने किसी को रेप किया होगा। सो मेन को बुरा तब कहा जाएगा जब वो एक्सट्रीम कुछ करेंगे, वुमेन को बुरा तब भी कह दिया जाएगा जब वो थोड़ा सा भी उनके स्टैंडर्ड से हटेंगी। द स्किज्म डिवाइड बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ मोरालिटी of gender, or rather for genders, transpires conspicuously clearly, right? And that also impacts the choices of profession. और इसी से उनके professional choices पे भी impact आता है। We ingrain prejudices early. एक छोटी बच्ची को हम जल्दी इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तूने डॉल्स और किचन सेट से खेलना है, तो उसको सिखाया जा रहा है कि this is your domain, right? A woman who is scared of cockroaches and lizards is liked by men. अगर कोई woman कॉकरोच से घबरा जाए तो मेन की मर्दानगी, मेन का जो मैनलीहुड है, दैट कम्स आउट, राइट। और जब वो हेल्प के लिए बुलाती है, मैन गोज लाइक अ हीरो एंड सेव्स हर। उसकी मैस्कुलिनिटी वहां से असर्ट होता है, आई एम द मैन, आई एम हर सेवियर, आई एम द हीरो, राइट। और वो टिमिड सी घबराई हुई लड़की जो छोटे से कॉकरोच से घबरा जाए, वो मैन को बहुत अच्छी लगती है भाई। Our so-called rules of morality have also seen the goddess in woman. बहुत important factor. Superficial concepts like these deprive the women the opportunity to be themselves, to express their physical and emotional desires. जब कोई वुमन क्लियरली कह दे दैट शी वांट्स टू बी सेक्सुअल, तो एक बहुत बड़ा हंगामा हम लोग मचा देते हैं। वाई? हमने ना हमारे विद मूवीज ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड एन इमेज। सती सावित्री, पुरानी फिल्मों के एक्ट्रेसेस को देखें आप, इंटीमेट सीन्स में भी दे वुड हार्डली एक्सप्रेस। वाई? बिकॉज अदरवाइज पीपल, वी एंड आई मीन यू एंड मी, हम लोग वुड नॉट एक्सेप्ट हर, क्योंकि हमें हीरोइन चाहिए, हमें एक्ट्रेस चाहिए सती सावित्री, राइट? सो ये हमने ऐसी इमेज बना दी है, इसीलिए सिनेमा ने ऐसे ही पोर्ट्रे किया है वुमेन को, राइट? वी आर द पीपल हु वर्शिप लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चों को हम पूजा करते हैं, बट जब वो बड़ी हो जाती हैं तो
उनको हम रेलीगेट करते हैं, डिमोट करते हैं टू द लोअर स्टेटस ऑफ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स. Unfortunately, even women are not united against this edifice, complicated system. Women भी united नहीं है इसमें. They are co-opted into this convoluted, twisted structure of patriarchy. वो patriarchy को strengthen कर रही हैं, male dominance को. Some women also like to be saved by men when they see a cockroach. कुछ women को अच्छा लगता है कि मैं कॉकरोच को देखकर चीख मारूं और somebody comes and saves me. सबको नहीं. कुछ women patriarchy में involved हैं, unfortunately. चलिए, which of the following is correct in the light of the passage? Men have all the liberty. क्या ये सही है? शायद नहीं. Right? Women don't have any liberty. ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसमें लिखा है कि men भी अगर रेप्स करें तो उनको बुरा कहा जाता है, लेकिन वो एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम कुछ करें तो ऑल द लिबर्टी नहीं, लेकिन काफी लिबर्टी है. Women don't have any liberty. ये एक्सट्रीम चॉइसेस होती हैं एनी वाली. Women who tolerate have admirers. Absolutely correct. सब जगह ही कहा गया है. See, a good woman who is not promiscuous endures. तो जो झेलेगी उसके लोग फैन होंगे. Female actors are not allowed to wear translucent clothes. अलाउ की बात नहीं है, अलाउड है उन्हें. अलाउ का मतलब गवर्नमेंट ने रोक रखा है, परमिशन तो है, but when they do so, we don't accept. According to the passage, one of the following is wrong. Identify the untrue. Men are criticized if they have many affairs. ये तो true है, given है कि फिर men भी लोथारियो हो जाते हैं जब बहुत affairs होते हैं. Rapists are not admired. ये भी true है, लिखा है कि फिर वो rapist को admire तो नहीं किया जाता. Rapists are not often dehumanized. Dehumanized का मतलब है इंसान वाला ट्रीटमेंट ना देना. Are often dehumanized. Women are dehumanized लिखा है, but men are not, right? So ये नहीं लिखा हमने कि हम उनको dehumanize करते हैं. यही correct answer है. चलिए, I mean this is also stated, but this is the correct answer. Okay, which of the following can be inferred जो ना दिया हो directly और उसके लिए stats भी हो. We make women feel like they are dainty since childhood. बिल्कुल सही. Correct. Okay, the actress was considered promiscuous. ये तो given है ना? So ये correct answer नहीं हो सकता, given नहीं होना चाहिए inference. The actress was considered promiscuous. वापस चलते हैं. ये देखिए, female actor was recently censured. तीसरी मैरिज की थी, तो इसीलिए सेंश्योर किया क्योंकि लोगों ने उसको promiscuous समझा. Where are we? Yeah, here. लोगों ने उनको लूज कैरेक्टर समझा. ये हमने इन्फर किया है क्योंकि उस वक्त बात वही चल रही थी, राइट? ये स्टेटेड है तो ये आंसर हो नहीं सकता. वी कंडीशन विमेन एज इफ दे आर वीक, ये भी स्टेटेड है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका. Why do we have such disparities? देखें, we look at women and men differently. ये रीजन नहीं है, राइट? Women need safety and security. Thus are given less liberty. वो men को भी जरूरत है सेफ्टी की. Women are less powerful than men. Not at all. Women are conditioned as weaker and that suits हम men की masculinity. बिल्कुल सही, यही रीजन है why we have disparities. क्योंकि जब वो बचाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं और हम पहुंच जाते हैं, we become men. Which of the following is incorrect? Women are not responsible for the system of patriarchy. ये, I mean, this is the correct answer. This is incorrect. कुछ हद तक women भी responsible हैं. Saving a woman from danger is a sign of masculinity. बिल्कुल नहीं है. वो humanity का sign है, masculinity का नहीं है. The choices given to men early determine their nature to a large extent. So, yes, ये भी correct answer नहीं है. Women are sometimes against one another. That strengthens patriarchy. सही बात है. चलो. So, ये आपका correct choice हुआ. With these words, I'm calling it a day for today, right? So, I hope you understood the session. I hope you liked it. If you have any query, if you have any suggestion, any problem, you're most welcome to discuss. Thank you.